Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. How are you? I hope you all are good at home and take care of yourself. So, students, I hope you all are understood the chapter and enjoy the story, The Redbud Tree. Yes. Now, today we are going to start book exercise of this chapter. Okay, but before starting the chapter, I will show you a video that based on this chapter. So, enjoy your video. Hello friends. Have you heard about seasons? Summer, winter, spring and autumn? Have you noticed how trees give a different picture in each of these seasons? Sometimes they are full of green leaves. Then they have flowers and fruits. Then leaves become brown and finally they fall off. Today, I will tell you a story about how 4 princes got confused because of this. King Brahmaputra, king of Varanasi, had 4 young princes. Each of them wanted to see the red bud tree that was very famous in their kingdom. The first prince set out in early spring. The tree was bare, with no leaves. He came back disappointed. The second went in spring, when the tree was full of bright red bud. The third prince went after spring was over. The leaves were all green. He could not understand why the tree was called Red Bud Tree. The last prince went the last, and he saw it covered with bean pods. He came back and said, I saw the red bud tree. "What is so special about it? It is nothing but a dead stump of wood." When I went in the woods, it was covered with hundreds of beautiful red buds. It looks like an ordinary tree covered with green leaves. Brothers, all of you are mistaken. I have just seen the tree, and I can say for sure that it is now covered with little bean pods. The king came by as they were talking. He heard their conversation. He laughed at their childishness and said, "My dear sons, all 4 of you have seen the same tree, but each of you saw it at a different time of the year." All the princes laughed along with the king. So my dear friends, common sense is also important and should be used at the correct time and place. Bye for now. So students, you enjoy the video? Okay. Now take out your book, page number 39 for doing exercises, book exercises now. Okay. So our first question is comprehension. First, take the correct picture to answer correctly. First, which tree did the eldest son see in the forest? जो उसका सबसे बड़े वाला सन था, उसने कैसा देखा था जंगल में ट्री को? Yes, where? Yeah, covered with green leaves. Yes, there. उसके ऊपर कोई लीफ नहीं थी ना जब वो गया था उधर? Okay. Now next is which tree did the second prince see in the forest? जो सन था, उसने राजकुमार था, उसने कैसा देखा? Covered with bean pods और red bud tree. Yes, red bud tree. Red bud tree देखा था ना उसने? Okay. Now turn your page number 40. Yes, answer these questions. Okay. So what is our first question? Yes स्टूडेंट्स, अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको हम ओरल कर लेते हैं, है ना? जब मैम आपको बाद में कॉपी वर्क एक्सप्लेन करेगी ना, तो आप ये फिर अपना रिटन वर्क भी हो जाएगा. ओके. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड 4 प्रिंस गो टू सी द रेड बड ट्री? क्यों बताओ? because they had grown up hearing many wonderful stories about a beautiful tree as known as red bud tree. Okay.
What did the youngest prince see when he went to see red bud tree? Okay, tell me what is the answer. When the youngest prince went to the sea, see the tree, he saw the tree was covered with ब्यूटीफुल रेड बर्ड्स. जब यंगेस्ट जो सन था उनका वो ट्री को देखने के लिए गया तो वो कैसा दिख रहा था, वो किससे कवर्ड था, रेड बर्ड मतलब रेड बर्ड से, ब्यूटीफुल रेड बर्ड से कवर्ड था. Why did the third son think red bud tree was not the correct name of the tree? बताओ, tell me what is the answer. क्या होगा इसका आंसर? Because when he saw it, जब उसने उसको देखा, it did not have any red bud. क्योंकि जो थर्ड सन था जब वो गया था ट्री को देखने के लिए, क्योंकि उसपे एक भी रेड बर्ड नहीं थी, इसीलिए. यस. Why did the tree look different to each of the prince? Why? क्यों मतलब दिखा उनको वो अलग अलग? क्योंकि वो सब ईयर के अलग अलग टाइम पर गए थे ना. कोई स्प्रिंग में गया था, कोई स्प्रिंग से पहले गया था, कोई स्प्रिंग के बाद में गया था, है ना, इसलिए ना. So what is the answer? Because the prince saw it at a different time of the year. Okay, understand? समझ में आए आपको इसके आंसर्स? Okay. Next is think and answer. What if all prince had gone to see the red bud tree together? क्या होता अगर सारे के सारे जो उसके बेटे थे, जो राजकुमार थे, वो एक साथ ट्री को देखने के लिए जाते? Would they still have different ideas about the red bud tree? Give reason for your answer. ओके, तो क्या तभी भी, जैसे इसने क्या पूछा है हमसे, क्या होता अगर सबके सब राजकुमार एक साथ ट्री को देखने के लिए जाते, क्या तभी भी उनका डिफरेंट आंसर होते या डिफरेंट आइडियाज होते ट्री के बारे में? यस और नो? नो, दे वुड नॉट हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट द ट्री बिकॉज दे हैड गॉन टू सी द रेड बड ट्री एट द सेम टाइम, दैट टू टुगेदर. ओके. Now next is, what lesson does the storytellers want us to learn from this tale? बताओ, tell me what is the moral? We learn that different people have different ideas. जो अलग अलग people होते हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम सबके अलग अलग ideas होते हैं ना. Yes, as they all individual. जैसे हम सब अलग अलग हैं, ऐसे हमारे ideas भी अलग अलग होते हैं. Okay. Okay students, word wonder. Okay, look at the pictures below. अभी देखो, आप यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हो ना. अभी क्या है, वन और मैनी. जैसे कि आपने ग्रामर में पढ़ा है ना पहले, वन एंड मैनी. एक जो होता है उसको हम वन, और जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको हम मैनी बोलते हैं. ओके. ओके, लुक एट द पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट है ना फर्स्ट पिक्चर में. देखो, ये वन एलिफेंट है और यहाँ पर मैनी एलिफेंट्स है, 3 एलिफेंट्स हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एलिफेंट लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 3 एलिफेंट्स, वन और मैनी. वी एड एस एट द एंड ऑफ द नेम मोर देन वन थिंग्स. जब एक से कोई ज्यादा चीज होती है तो उसके लिए हम एस और ईएस का यूज करते हैं. ओके. सो सेकंड इज पेन. देखो, यहाँ पर एक पेन है और यहाँ पे 2 पेन्स हैं. तो अब देखो, हमारे बोलने भी ऐसे आता है ना, पेन और पेन्स, है ना. ऐसे गर्ल्स, बॉयज, है ना. तो किसी में एस भी लगता है और किसी में ईएस भी लगता है. ओके. एग. तो फर्स्ट इज एग, और देखो यहाँ पे एग्स, क्योंकि इस एक है तो हमने इसके लिए क्या बोला, 1 एग, और यहाँ पे 3 है तो हमने क्या बोला, 3 एग्स. ओके. बॉल, 1 बॉल, और अगर 1 2 3 4 और 4 है तो हम क्या बोलेंगे, यस, 4 बॉल्स. व्हाट वी स्पीक, 4 बॉल्स. ओके. सो देखो, जैसे हमने भी आपको बताया था, वी एड एस एट द एंड टू द नेम मोर देन वन थिंग. जब एक से ज्यादा चीज होती है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एस. फॉर एग्जाम्पल, वी से 1 बॉल, बट अगर 4 बॉल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉल्स.
क्या बोलेंगे? बॉल्स। जैसे मैम ने अभी आपको एग्जांपल दिया कैट है ना, अगर वन है, सिंगल कैट है तो हम उसको कैट बोलेंगे, अगर 2 3 4 अगर ज्यादा कैट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैट्स। क्या बोलेंगे हम उसको? कैट्स। ओके, नेक्स्ट, sometime we add es to name more than one thing. For example, one bus और 4 buses. देखो अपने बोलने में ही आता है ना buses. अब अपन ऐसे तो नहीं बोल सकते ना बस बस बोल सकते हैं? No, buses. क्या बोलेंगे? buses. ओके, one fox. अब fox को fox थोड़ी बोलेंगे, foxes. 10 foxes. ओके, क्लियर? अपन को बोल के ही पता चल जाता है कि हमको क्या एस लगाना है या ईएस लगाना है। ओके, राइट द वन और मैनी ऑफ दीज वर्ड्स। वन, फ्रूट। फ्रूट का क्या होगा? फ्रूट्स? नो, फ्रूट्स। FRUITS, फ्रूट्स। राइट विद मी, FRUITS, फ्रूट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे मैनी दिया हुआ है, हमको इसको क्या करना है? हमको इसको वन बनाना है। ओके, क्या लिखा है? PEACHES, पीसेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? PEACH। देखो इसके आगे ES लगा था ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉक्स। FOX, फॉक्स। जैसे मैम ने आपको बताया, फॉक्स थोड़ी बोलेंगे अपन इसको, क्या बोलेंगे? टेल मी। यस, foxes, FOXES, ES लगाया ना मैम ने यहाँ पर, foxes। ओके, पेन। तो पेन का क्या होगा? पेंसिल्स? नो, पेन्स, PENS, पेन्स। गुड। अब देखो फिर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बॉल्स। अब बॉल्स का वन क्या बनाएंगे हम इसको? किसमें कन्वर्ट करना है? वन में करना है, तो हम क्या करेंगे? एस को हटा देंगे तो बॉल, BALL, बॉल। बॉल का बॉल्स। चलो रिपीट कर लेते हैं एक बार हम। फ्रूट, फ्रूट्स। पीच, पीच। फॉक्स, फॉक्सेस। पेन, पेन्स। बॉल, balls. Okay, now next is B. Look at the picture. Look at the pictures. Write how many of the things you see in them. One has been done for you. देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही है, कार है, टॉफीज है, पेंसिल्स है ना। अब आपको क्या लिखना है? उसका नंबर भी लिखना है और उनका नेम भी लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑरेंज, तो हमने क्या लिखा? 1 orange. Okay, now second is how many cars are there? Count them. 1 2 3 4. So what we write? 4 car या cars? Yes, cars, CARS, cars. Okay, now next is third number. Yes, what is this? Chocolates. You all love chocolates now? I know you all love chocolates, so count them with me. 1 2 3 4 5. So what we write? 5 toffees. Toffees, chocolates, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेंसिल्स, है ना। कलर पेंसिल, कलर दिख रहे हैं ना आपको? कलर दिख रहे हैं ना आपको? काउंट देम, काउंट देम विद मी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? क्या कैसे लिखेंगे हम इसको? 8 कलर पेंसिल्स या पेंसिल? बताओ। पेंसिल्स, यस, 8 पेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट, ये बताओ, ये हैट्स है या हैट है? टेल मी। यस, बिकॉज ये ओनली 1 है यहाँ पर। ओके, तो 1 हैट। यस, नाउ यस, टेल मी। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? ये आप ही बताओगे मैम को, मैम नहीं बताती है। ओके, यस, काउंट देम। 1 2 3 3 बर्ड्स, 3 बर्ड्स। बर्ड लिखेंगे या बर्ड्स लिखेंगे? टेल मी, इज इट ओके? नो, इट्स रॉन्ग। एस, बर्ड्स, बिकॉज ये 3 है, 1 से ज्यादा है ना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके साथ स्टूडेंट, अब हम इसके साथ क्या करते हैं? अब हम इसके साथ एक और एक्टिविटी एंजॉय करते हैं। इसके आंसर्स आपको देने हैं। ओके, मैम आपसे क्विकली आंसर्स पूछेगी और आप मुझे मैम को बताएंगे। ओके, बॉय। अब देखो बॉय का क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स।
ओके, बॉय, बॉय का बॉयज या बॉयज, बॉयज, BOYS, ओके। बस, बस का क्या होगा, बसेस या बसेस, बसेस, ओके। आर्म, आर्म्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यस की। अब बताओ की का एक की है और सारे, अगर बहुत सारी कीज होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कीज, ओके। डे, जैसे वन डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जब सब डेज, मैम क्या बोलती है, राइट द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो डेज, ओके। बुश, बुश का क्या होगा, बुशेस, yes, very good students. We are done book exercise, okay. Remaining exercise we will explain in next meeting. Till then you practice it and read the lesson carefully. Take care, bye bye.